Sir Benjamin Franklin said, "An investment in knowledge pays the best interest." So, guys, we need to keep increasing our knowledge. Hello, everyone. How are you? I hope you all are absolutely good and fine and carrying on with your studies. I am Devansh, your geography trainer over here. I welcome you all to our channel, Graduate Yourself. It's a unique platform of service of the students, service for the students, and service by the students. So guys, in last few weeks, there has been a lot of uncertainties regarding the university exams. But guys, finally, the university has decided to conduct the exams for the final year students of the both UG and PG, and to promote other students, and their examination will be taken later on. But still, we cannot rely on this decision completely, as there is lots of swings and fluctuations prevalent in UGC guidelines. So guys, we need to keep our studies continue. For the same purpose, I am back with another important lecture series from human geography, that is the human settlements. This entire lecture series will cover the basics of settlement geography as well as help you out with your answer writing. Okay guys, now let me elaborate what all stuffs this series will be covering. Okay, so starting with the topic human settlements, it will incorporate what is settlements, origin of settlements, classification of settlements, functions of rural settlements, patterns of rural settlements. Next part will be covering the urban settlements, the origin of towns, functional classification of towns, and etc. stuffs. Okay, now guys, it is not possible to cover all these topics in just one video. So this series will be in several parts covering all the different topics. Now, as far as the sources are concerned, it has been incorporated from Human Geography by Majid Hussain, Geography of Settlements by R.Y. Singh, and Class 12th NCERT Geography, as well as some stuffs have been taken from the articles on the internet. Okay, it's my humble request, guys, that please stay tuned with us till the end of the lecture so that you are able to absorb properly all the content information given through this video. So guys, without wasting any more time, let's get started. Alright guys, as I have promised you earlier that I will keep the mode bilingual, so you need not to bother about it. I will keep speaking Hindi from time to time. Now let us see and move on to what is settlements. Settlements basically किसे कहते हैं या क्या होती है settlement and किन किन चीज़ों से मिलके settlement बना होता है, आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं. Okay. Alright guys, so there are several definitions of settlements, but for your convenience I have sorted out few of them which I personally find the most relevant and appropriate and also guided by my teachers. Okay, including the first, which is by Sir Finch VC and G.J. Trevatha. Okay, so according to them, the term settlement refers to the characteristic groupings of population in occupants unit, together with the facilities in the form of houses and streets which serve the inhabitants. Alright, तो दोस्तों इनके हिसाब से settlement basically एक ऐसी ग्रुपिंग हो गई पॉपुलेशन की, या एक पॉपुलेटेड प्लेस हो गया, कोई कम्युनिटी कह लीजिए या एक एरिया कह लीजिए. इट्स अ प्लेस वेयर पीपल यूज टू लिव, जहाँ लोग रहते हैं. Along with that, they build up several types of infrastructure such as the houses, buildings, street, paths for their convenience, etc. stuffs. So these are the components and the elements of the settlement. ये सारी चीज़ें जो कि एलिमेंट्स के पास सेटलमेंट्स के आसपास पाई जाएंगी. ओके, द सेटलमेंट यूनिट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी ऑफ ह्यूमन बींग्स टुगेदर विद द बिल्डिंग्स इन विच दे लिव और दे अदरवाइज यूज एंड द पाथ्स एंड स्ट्रीट्स विच दे ट्रेवल. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिकली सेटलमेंट यूनिट किन किन चीज़ों को कॉम्प्राइज करेगी, सच एज the buildings, okay, where the human beings used to live together, और वो किसी पर्पस से हो सकती है.
एंड दी पाथ्स एंड स्ट्रीट्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन और लोकोमोटिव पर्पस से हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कंपोनेंट ऑफ सेटलमेंट की. So this is the basic idea which was presented by Sir Finch VC and GT Trivartha regarding the settlements. Now moving on, let us see the views of Sir R.L. Singh. Okay, according to him, the settlement is an occupants unit, represents thus an organized colonies of human beings, including the buildings in which they live or work or store or use them otherwise, and the tracts or streets over which their movements take place. Okay, so again he is saying this, clarifying the same thing or justify the same thing which has been said earlier by Sir Finch VC and GT Trivartha, that it is an organized colony of a human beings, organized in the sense that there are several infrastructure present in order to facilitate the population living over there, such as the buildings which can be used for the purpose of living or the work, means both it can be residential or commercial purpose, for the purpose of storage and business, etc. Tracks and streets are also present over here for the movements may take place. Okay, again which I have told you. Now moving on, there is a definition by Sir C.A. Doxydis. According to him, the human settlements include very temporary settlements, semi-permanent settlements, and permanent settlements. Okay, so basically he's trying to indicate the nature of settlement on the basis of the time period, such as temporary settlement. Basically temporary settlements भी हो सकते हैं, जैसे nomads वगैरह होते हैं आपके, तो वो basically transhumans practice करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे move करते हैं, तो उनका कोई permanent settlement नहीं होता है. Second is the semi-permanent settlements. इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल वेल established settlement is over there, and for some reason there came a natural calamity or disaster and people are forced to move out of there, तो वो बेसिकली एक सेमी परमानेंट सेटलमेंट हो गई. And there are the permanent settlements such as the big and large cities where people never used to move out generally. So ये तीन settlements उनके हिसाब से हुई on the basis of the time period. तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा. ओके, नाउ मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है एग्जैक्टली कि सेटलमेंट किसे कहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स, यानी सेटलमेंट्स की उत्पत्ति कब हुई. थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलट के इसे जानने की कोशिश करते हैं. ओके, सो द प्रिसाइज रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेटलमेंट्स आर नॉट नोन एज दे ऑकर्ड बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री. तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि सेटलमेंट्स का फॉर्मेशन कब हुआ या ये कब ऑकर हुए, इसको लेके कोई भी रिटन रिकॉर्ड या हिस्ट्री नहीं है. रीज़न ये है कि जो भी इवेंट्स हुए हैं सेटलमेंट फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री या रिटन हिस्ट्री से पहले ही हो चुके हैं, तो कोई प्रिसाइज या एग्जैक्ट हमारे पास विटनेस या प्रूफ नहीं मिलता है. Before the domestication of plants and establishment of settlements, the human beings were nomads, wandering in the tribes across the landscape in search of food and water. तो basically हुआ क्या था, when the man started the agriculture and start establishing the settlement, उससे पहले basically human beings यानी जो homo sapiens थे वो nomads हुआ करते थे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे move करते थे, वो wanderer थे इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. जैसे कि हमें पता है कि जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो एक गैदरर्स थे और वो अपना फूड कलेक्ट करके खाते थे एंड दे यूज्ड टू हंट. धीरे धीरे करके उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं. द फूड वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू द गैदरिंग ऑफ वाइल्ड बेरीज एंड रूट्स और द किलिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फूड ऑब्टेन किया था वो बेसिकली गैदरिंग करके जो फल फूल हुआ करते थे उन्हें वो खाया करते थे बेसिकली, या जो नोड्यूल्स यानी जिनके रूट्स वाली जो आपके सब्जी हुआ करती थी उनको वो खाया करते थे बेसिकली, और हंटिंग पे भी रिलाई करते थे. सो दीज वर ऑल द सिचुएशंस बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट्स. Okay guys, so moving on, the settlements originated on relatively high sites along with fertile agricultural land and river leaves where water supply was plentiful and life could be secure. The history of human settlement reveals that man has close association with the rivers since the early times.
ओके दोस्तों, तो इसका मतलब जो सेटलमेंट का ओरिजिन है वो हम ट्रेस कर पा रहे हैं ऑन रिलेटिवली हाई साइट्स अलोंग द फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड। यानी सेटलमेंट ओरिजिन में कब आया? विद द कमिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि के साथ साथ ही सेटलमेंट भी ओरिजिन में आया। तो ये आपस में चीज़ें रिलेटेड हैं। ओके, तो बेसिकली सेटलमेंट सबसे पहले पाई कहाँ गई? जो पाई गई हैं वो पाई गई हाई साइट्स यानी ऊंची जगहों पे, जो कि फर्टाइल एग्रीकल्चर, जो आपका ट्रैक्ट है, चाहे आप नॉर्दर्न इंडिया वाला ले लीजिए पूरा पोर्शन जो कि फर्टाइल एलुवियल प्लेन से बना हुआ है, तो उसके अलॉन्ग जो ऊंची जगहों पे वहाँ पास सेटलमेंट का ओरिजिन ट्रेस किया जाता है, जहाँ पे द वाटर सप्लाई वॉज प्लेंटीफुल एंड लाइफ कुड बी सिक्योर, जहाँ पे उन्हें बेसिकली किसी तरह का थ्रेट नहीं हुआ करता था और साथ ही साथ वाटर और फूड सप्लाई भी बहुत ही प्लेंटीफुल हुआ करती थी। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एंशंट हिस्ट्री से, जो कि है बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने बहुत ही बेसिक पढ़ा होगा तो आपको इतना तो पता होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इट ऑकर्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस। तो ये सबसे एंशियंट सेटलमेंट थी उस समय की। और फेवरेबल कंडीशंस क्या मिली? द प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ द वाटर एज वेल एज द फर्टाइल एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट। तो इन रीजन से जो सेटलमेंट्स है हमारा वो ओरिजिन या अकाउंट में आया। ओके, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स रिवील दैट अ मैन हैज़ क्लोज एसोसिएशन विद द रिवर्स सिंस द अर्ली टाइम्स। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री से एग्जांपल दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये सिंपल सी ये ऐसा दर्शाता है कि जो ह्यूमन है उसका बहुत ही गहरा लगाव रहा है रिवर्स के साथ इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट एंड सर्वाइवल। Okay, so moving on, the historians and cultural anthropologists have given several explanations for the development of human settlements. Okay, यानी जो हमारे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। वो क्या कहते हैं कि द मेन रीजन्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट्स हैव बीन द रिलीजियस, कल्चरल, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ओके, तो बेसिकली इन्होंने अपने ओपिनियन को कई पार्ट में डिवाइड किया। उनका ये मानना है कि रिलीजियस, कल्चरल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, इन कारणों से जो हमारा सेटलमेंट है वो इस्टेब्लिश हुआ। कैसे हुआ दोस्तों? आइए इनको एक एक करके समझते हैं और देखते हैं। Okay guys, so the very first factor which gives us the account of origin of human settlements, that is the religious factors. आइए जानते हैं किन किन रिलीजियस या धार्मिक कारणों की वजह से जो हमारा सेटलमेंट है वो अस्तित्व में आया। Okay, so the first permanent settlement may have served religious purposes, specifically as the places to bury the dead. जी हाँ दोस्तों, जो हमारी पहली परमानेंट सेटलमेंट्स थी वो अस्तित्व में आई थी धार्मिक कारणों की वजह से या रिलीजियस पर्पस की वजह से। कौन कौन से थे वो? जैसे कि स्पेसिफिकली एज प्लेसेस टू बेरी द डेड। ओके, यानी जो बेसिकली मुर्दा हुआ करते थे या जो डेड बॉडीज़ थी उनको दफनाने की जो जगह थी, धीरे धीरे करके वो एक रिलीजियस पर्पस की वजह से एक परमानेंट सेटलमेंट का शेप लेने लगी। कैसे? आइए देखते हैं। आफ्टर ऑल, what could be more permanent than a grave? Exactly. The nomadic tribes may have had rituals honoring the dead, perhaps memorial services on the anniversary of a death. Having established a permanent resting place for the dead, the tribe would have installed the priests at the site to perform the appropriate rituals. जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी की कब्र बनाते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए परमानेंट हो जाती है। ओके, सो उस समय क्या हुआ करता था? ड्यूरिंग द व्हेन द ह्यूमन बींग्स वर नोमैड्स, सो द नोमैडिक ट्राइब्स में हैव हैड रिचुअल्स। तो ये माना जाता है कि बेसिकली जो नोमैडिक ट्राइब्स थे उनके यहाँ कुछ रिचुअल या ऐसे रीति रिवाज हुआ करते थे कि बेसिकली वो जो डेड बॉडीज़ हुआ करती थी उनकी कम्युनिटी से, वो उसको ऑनर करते थे या उनकी पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। परहैप्स द मेमोरियल सर्विसेज ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द डेथ, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे वो कई ज़्यादा मेमोरियल सर्विसेज और बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे। तो समय के साथ हुआ क्या कि बेसिकली इन सब कारणों से वह परमानेंट सेटलमेंट एक शेप लेने लगी। उन्होंने सोचा होगा कि बेसिकली कि उन्हें बार बार ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए
एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है। तो इन तमाम शारीरिक परेशानियों को सामना करते हुए इन्होंने डिसाइड किया होगा कि क्यों ना हम ऐसी जगह ही परमानेंट सेटलमेंट का इस्टेब्लिशमेंट कर लें जहाँ से ये सारी चीज़ें या ये सारे रिचुअल्स जो कि डेड के लिए हैं वो आसान हो जाएं। तो धीरे धीरे ऐसी साइट जहाँ पास हम डेड बॉडी को बरी करते थे तो बेसिकली वो एक परमानेंट सेटलमेंट के फॉर्म में बाहर निकल के आई। Okay, subsequently, the place of worship, that is temple, became a center of attraction and people in the development, and helped in the development of the settlements. तो दोस्तों समय के साथ हुआ क्या, जो पूजा पाठ की जगह हुआ करती थी जैसे मंदिर हो गए, टेम्पल्स, इट बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जब श्रद्धालु वहाँ जाने लगे तो बेसिकली वहाँ पास भीड़ बढ़ने लगी एंड इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स। तो उसके आसपास धीरे धीरे घर भी बनने लगे और लोगों ने रहना शुरू कर दिया। इस तरह सेटलमेंट फॉर्मेशन में आई। तो दोस्तों ये हैं कुछ रिलीजियस कारण जो माने जाते हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स। Okay, so the settlement may also have served as a place to house women and children, permitting the men to wander further in their search for food. Women worked on home crafts such as pots, baskets, clothes, and other household goods using materials gathered by men. तो settlement basically वो जगह हुई जहाँ पास the women and children of the family used to stay over there because they need nurturing, they need protection, okay, and the men used to wander out in search of food and other necessary stuffs. तो समय के साथ हुआ क्या कि जब women और children घर में हैं, so for the sake of time pass आप कह सकते हैं या basically कुछ innovative या creative करने के लिए the women started working on various cultural things such as क्या क्या चीज़ें थी वो, सच एज होम क्राफ्ट्स, बेसिकली क्राफ्ट्स बनने लगे, सच एज पॉट्स, फिर उस पर भी काफ़ी डिज़ाइनिंग एंड पेंटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, एंड बास्केट्स, क्लोथ्स, यस क्लोथ्स बनने लगे, एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स, बाकी तमाम सारे जो कि घर गृहस्थी की चीज़ें थी वो भी बनने लगी। और कई सारी आर्ट्स आपकी पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, ये सब धीरे धीरे करके अस्तित्व में आने लगी। ये तभी पॉसिबल है जब एक सेटलमेंट वेल इस्टेब्लिश्ड हो। ओके और बेसिकली ये सब चीज़ें जो क्राफ्ट्स वगैरह बन रहे थे ये बन किस चीज़ रहे थे, जो कि मटेरियल्स गैदर्ड बाय मेन, जो कि घर के बाहर काम करते थे, वो जो मटेरियल्स लेके आते थे तो उससे घर की विमेन ने क्राफ्ट्स बनाना शुरू किया। तो एक कल्चर का हमें यहाँ प्रोपोगेशन देखने को मिलता है दैट हेल्प्ड अ लॉट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट। ओके तो ये रहे हमारे कल्चरल फैक्टर्स। Now moving on to our third factor, that is the political and military factors. तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किन पॉलिटिकल कारणों की वजह से जो सेटलमेंट है वो अस्तित्व में आया। ओके द प्रीस्ट्स, टीचर्स, women and children were vulnerable of attack from other tribes. In order to protect them, youths, soldiers were stationed in the settlement. समय के साथ हुआ क्या दोस्तों, जब सोसाइटी प्रॉस्पर करके आगे बढ़ी तो जो उसके स्कॉलरिक क्लास थी यानी प्रीस्ट्स, टीचर्स, साथ ही साथ जो विमेन हुआ करती थी एंड चिल्ड्रन, दे वर प्रोन और वल्नरेबल ऑफ अटैक फ्रॉम दी अदर ट्राइब्स। ये दूसरी जनजातियाँ या दूसरे कबीलों से अटैक के लिए काफ़ी वल्नरेबल हुआ करते थे। ओके तो बेसिकली इनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया गया, द सेटलमेंट वॉज बिल्ट। जैसे कि आपने पुराने समय में पढ़ा होगा कि गैरिसन टाउन्स वगैरह बिल्ड किए जाते थे, तो उसी तरह सेटलमेंट भी बिल्ड की जाने लगी ताकि जो उस कबीले के या उस ट्राइब्स के जो यूथ्स हैं उनको सोल्जर्स फॉर्म में ट्रेनिंग वगैरह दे के उनको वहाँ डिप्लॉय किया जा सके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी एंड देयर ट्राइब्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से सेटलमेंट फॉर्मेशन में आया। Okay, so the settlements were also the base for political leaders who needed a strategic location from which to protect the tribe's land claim। जो कि लोग
बेसिकली उस समय की ट्राइब को लीड करते थे या उनके बिहाफ पे कई सारे फैसले लिया करते थे या अपना निर्णय सुनाया करते थे, जो कि उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे। ओके, सो बेसिकली उनके लिए भी सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड या नेसेसरी हो चुका था। क्यों? बिकॉज दे नीडेड अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन from which they can protect various resources and various stuffs which the tribe is holding। मतलब वो तमाम सारी चीज़ें या रिसोर्सेज जो कि ट्राइब के पास हैं या वो भूमि का टुकड़ा जो कि जिस पे वो रह रहे हैं, उन सारी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे उनको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की ज़रूरत हुआ करती थी जहाँ से वो अपना पूरा प्लान और आर्मी वगैरह को मॉनिटर करते थे। तो बेसिकली उनके लिए सेटलमेंट बिल्ड करना इंडिस्पेंसिबल हो चुका था। तो दोस्तों ये थे वो पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस जिसकी वजह से जो सेटलमेंट है वो अस्तित्व में आया। नाउ मूविंग ऑन टू अवर अनदर रीजन, दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर्स which led to the establishment of the settlements. Okay guys, the settlements acquired an economic role to store extra supply of food। जी हाँ दोस्तों, जब समय के साथ कम्युनिटी बिल्डअप हो गई तो बेसिकली उसकी फूड डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो एक्स्ट्रा सप्लाई थी फूड की उसको स्टोर करने का काम जो किया वो सेटलमेंट ने ही किया है। ओके, तो बेसिकली इस वजह से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इकोनॉमिक फैक्टर था जिस वजह से सेटलमेंट को बिल्ड करना एक इंडिस्पेंसिबल काम हो चुका था। ओके, क्योंकि हुआ क्या करता था, कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल कैलामिटीज़ जो कि उस समय में आती रही होंगी, तो उन कारण से एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ फूड को स्टोर करने का काम सेटलमेंट्स ने ही किया है। ओके, सो द पीपल कुड ब्रिंग द कमोडिटीज़ दे हैव कलेक्टेड इन द सेटलमेंट। वो तमाम सारी चीज़ें जो कि लोगों ने इकट्ठा की हैं एज फॉर द ट्राइब और फॉर द कम्युनिटी एज अ होल, वो बेसिकली सेटलमेंट में लाके उसे कलेक्ट करते थे सो दैट दे कुड यूज़ इट इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी। The settlement could serve as neutral ground for the different people who could stay together and perform the socio-economic activities। तो मोटा मोटी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि सेटलमेंट्स उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा या एक ऐसा ज़रिया बन चुका था जिसके थ्रू वो अपनी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी कर सकते थे, जैसे कि ट्रेड्स एंड बिजनेस और व्यापार, इन तमाम सारे चीज़ों के साथ साथ वो मार्केट में भी अपना जो भी प्रोड्यूस था उसे सेल या परचेज़ किया करते थे। ये तमाम सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि बेसिकली एक सेटलमेंट ड्रिवन थी, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ वी हैव टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सेटलमेंट and the reasons behind the origin of settlement and all the factors which have to very large extent determined the origin of settlements. Now our next topic is the classification of settlements, यानी settlements कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें होती हैं, उनको एक एक करके हमें देखना है। तो आइए इसे देखते हैं। Let's get started. So as far as the classification of settlements is concerned, settlements can broadly be divided into the two types. First is the rural settlement and second is the urban settlement। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि सेटलमेंट को हमने दो भाग में क्लासीफाई किया है। एक सेटलमेंट बेसिकली जो कि ग्रामीण इलाकों में पाया जा रहा है जिसे हमने रूरल सेटलमेंट कहा, और दूसरा जो कि अर्बन एरियाज में पाया जा रहा है यानी शहरी इलाकों में, एंड दैट इज नोन एज द अर्बन सेटलमेंट। इनके बीच में क्या अंतर है आइए समझते हैं। So the basic differences between the rural and the urban areas in general. First, the major difference between the rural and urban areas is the function। इसका मतलब इन दोनों सेटलमेंट्स में जो सबसे बड़ा या मूल अंतर है वो है फंक्शंस रिलेटेड, यानी कौन कौन से फंक्शंस इन अलग अलग सेटलमेंट्स में हो रहे हैं, आइए जानते हैं। So the rural areas have predominantly primary activities, whereas the urban areas have domination of secondary and tertiary activities। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो रूरल यानी ग्रामीण इलाके हैं उनमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी आपकी एग्रीकल्चर, कृषि, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये तमाम सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पास बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं या डोमिनेंट हैं और वहाँ की मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कफोर्स इसी में एम्प्लॉयड है। Whereas the urban areas, अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ हमें इसका ऑपोजिट देखने को मिलता है। They are having the domination of the secondary and tertiary activities, यानी
जो भी चीज़ें हैं यानी रॉ मटेरियल है उसका प्रोसेसिंग हो गया एंड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये जितने भी स्टफ्स हैं, और टर्शरी एक्टिविटीज़ यानी जो आपका सर्विस सेक्टर पूरा का पूरा हो गया, और जितनी भी जॉब्स हैं वो सारे के सारे जो प्रेवलेंट हैं और जो डोमिनेंट फॉर्म में पाए जा रहे हैं वो अर्बन एरियाज़ में पाए जा रहे हैं। तो ये रहे बेसिकली द डिफरेंसेस ऑफ फंक्शन बिटवीन द टू सेटलमेंट्स। जनरली द रूरल एरियाज़ हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देन द अर्बन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ना होने के कारण जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पास पॉपुलेशन की डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़। तो दोस्तों आइए इन्हें एक बार अलग अलग भी देख लेते हैं। ओके, so what is rural settlements? Any settlement in which most of the people are engaged in agriculture, forestry, fishery, mining, etc. stuffs is known as the rural settlement. A rural settlement is often been called as agricultural workshop. Okay, इसका मतलब ये हुआ ऐसी जगह जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कृषि, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इन तमाम सारी गतिविधियों में संलिप्त या इन्वॉल्व हैं या एम्प्लॉयड हैं, ऐसे एरिया को हम रूरल सेटलमेंट कहेंगे। आप इसे आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रूरल सेटलमेंट को साथ ही साथ एग्रीकल्चरल वर्कशॉप भी कहा जाता है, बिकॉज जो हमारा मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और प्रोड्यूस है वो रूरल एरिया से ही आता है। Moving on to the urban settlements. So, urban settlements are generally compact and larger in size. In urban settlement, most of the people are engaged in secondary, tertiary and quaternary activities. It is an area with a high density of human created structures. जी हाँ दोस्तों, रूरल सेटलमेंट के कंपैरिजन में जो अर्बन सेटलमेंट होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और लार्जर होता है इन साइज़। सो इन अर्बन सेटलमेंट पीपल जो होते हैं वो सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी सेक्टर या इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेसिकली जॉब्स हो गई आपकी, या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एंड यू नो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ एन एरिया विद द हाई डेंसिटी ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड स्ट्रक्चर्स। कई सारी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पास डोमिनेंट फॉर्म में पाई जा रही हैं और ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू द रूरल सेटलमेंट्स। तो ये आपने इन दोनों को देख लिया है और आपने इन दोनों के बीच के अंतर को भी जाना है। Okay guys, so rest of the things we will deal in next video, because video again काफ़ी लंबा हो जाएगा and that will not serve the purpose. तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। Till then stay tuned with us. I'll catch you soon. मेरे साथ अंत तक जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you so much, and yes, don't forget to like, share and subscribe our videos